टाटा ने जो प्रीमियम हैचबैक में कदम रखा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग कदम है और डेफिनेटली ये इसको आगे लेके जाने वाला है। क्या आपको पता है इंडिया में बिकने वाली हर चौथी हैचबैक एक प्रीमियम कैटेगरी की होती है, विद द प्राइस रेंज ऑफ दिस कैटेगरी स्टार्टिंग फ्रॉम 6 लाख एंड गोइंग ऑल द वे अप टू 13 लाख थैंक्स टू लेटेस्ट Hyundai लॉन्च i20। टाटा ने भी इस सेगमेंट में अपना लक ट्राई करने की कोशिश की एंड दे कम अप विद Altroz in the very beginning of this year and the response is simply amazing. Now Altroz टाटा की पहली ट्राई है at the premium hatchback segment जिसमें Baleno जैसी fuel efficient और i20 जैसी feature pack cars already मौजूद थी। So if Tata had to come in this category, they had to be unique and therefore they decided to make this car a gold stand. For reference, we have the XZ Plus variant of Altroz with us today. So let's begin with a walk around of this variant and let's see how much of the gold standard is it really. Starting with the design, so Altroz is based upon the Alpha architecture which stands for agile, light, flexible and advanced. In short, ये टाटा का लेटेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसपे हमें आगे भी टाटा की और कुछ कार्स देखने को मिल सकती हैं। Talking about the safety, so this is a 5-star global NCAP rated car. Now let's take a closer look at the exteriors of Altroz. But before that, I would like to thank Berkeley Tata Chandigarh for allowing me to cover this car for our channel. So if you are interested in buying any new Tata car, just come here. Showroom की address location और contact details मैं नीचे description में भी दे दूंगा. Based on the 45X concept car, front के कुछ highlights हैं Spencer front grille with a humanity chrome line. ऊपर देखेंगे तो आपको piano black finish दी गई है. Then sides में dual projector headlamp unit है जो front के साथ साथ sides में भी extend होता है. And this particular thing is inspired from a helmet visor. नीचे आएंगे तो आपको DRLs और fog lights की positioning separate दी गई है. So even after so much of design upwork, मेरे को थोड़ा सा proportion wise यहाँ पे Indica Vista दिख रही है और design and look wise थोड़ी सी Tiago दिख रही है. So Tata ने अपनी roots को नहीं छोड़ा, but I must say design looks very bold and sharp from the front. Moving to the side profile, तो यहाँ पे दो तीन बहुत ही eye catchy elements हैं. Starting with this ORVM, तो यहाँ पे आपको complete piano black finish दी गई है एंड ये बहुत अच्छा लग रहा है ड्यू टू दिस फिनिश। प्लस आपको यहाँ पे क्रोम इंसर्ट्स दिए गए हैं जो इसको बहुत ही प्रीमियम अपील दे रहे हैं। एंड आई एक्चुअली लाइक द फैक्ट कि साइड इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट ORVM पे नहीं की गई क्योंकि इससे डिजाइन थोड़ा सा और लग सकता है। द सेकंड डिजाइन एलिमेंट हियर इज द लेजर एलॉय व्हील्स और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है। सो वी कैन कॉल दिस अ ड्यूल टोन फिनिश एलॉय व्हील। अगर प्रोफाइल की बात करें दैट इज 195/55 R16 87H। सो एक्चुअली ये प्रोफाइल अपील में भी अच्छी लगती है। वाइड सेक्शन होने की वजह से ट्रैक्शन अच्छी मिलती है, लो प्रोफाइल होने की वजह से हैंडलिंग बेटर हो जाती है एंड यू ऑल्सो गेट दिस अपर बल्ड आर्च जिसकी वजह से इसको एक मस्कुलर अपील मिलती है। Although you get only 165 mm of ground clearance जो ज्यादा रफ पैची रोड्स पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। एनीवेज थर्ड डिजाइन एलिमेंट के लिए मेरे को साइड प्रोफाइल आपको कंप्लीटली दिखानी पड़ेगी। Here you can see the diamond shaped daylight opening area which is very wide and also जो आपको belt line मिल रही है नीचे that is piano black in finish and is somewhat inspired from the shooting comet. So it is wide from the front and पीछे आते आते थोड़ी सी नैरो होके मर्ज हो जाती है सी पिलर में। But to properly make it look like a diamond, design looks a bit confused to me at two places. Number one is this quarter glass panel which is very small और मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से आपको अंदर से कुछ बाहर better visibility देखने को मिलेगी। And the second one is on the other apex of the diamond shape which is the C pillar mounted rear door opener जो थोड़ा सा डाउन मार्केट लग रहा है एंड ऑल्सो डोर ऑल्सो लुक्स अ बिट ऑफ इनकम्प्लीट। अगेन प्रोफाइल को दूर से देखें तो ए पिलर्स एंड सी पिलर्स को बॉडी कलर रखने की वजह से आपको रूफ और डोर्स आपस में कनेक्टेड दिखते हैं ऑल्दो यू गेट सैश्ड आउट ब्लैक टेप फिनिश ऑन द बी पिलर। सो यहाँ पे प्रॉपर 3D स्कल्प्टेड रियर लुक देखने को मिल रहा है थैंक्स टू दिस सिग्नेचर LED स्प्लिट टाइप टेल लैम्प। बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अबव। तो यहाँ पे जो आप स्पॉइलर देख पा रहे हैं इसको रूफ के साथ ही इंटीग्रेट किया गया। देन यू गेट दिस हाई माउंट स्टॉप लैम्प, स्मार्ट वाइपर वॉशर सेटअप जो दूर से ऐसा लगता है एंड देन दीज रेड लाइंस इंडिकेटिंग द रियर डीफॉगर। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको टाटा का लोगो मिलेगा बीच में एंड देन यू गेट वाइड स्प्रेड Altroz बैजिंग व्हिच इज एम्बॉस्ड अगेन ऑन द पियानो ब्लैक फिनिश। बीच में देखेंगे तो आपको रियर कैमरा मिल रहा है फॉर योर पार्किंग असिस्टेंस। बट व्हाट इज द गुड पार्ट अबाउट दिस टेल लैंप्स इज दे टोटली गेट मर्ज्ड इनटू द ब्लैक सराउंड्स और आप इनको सिर्फ रात को ही ग्लो करते हुए देख सकते हैं। नीचे की तरफ आए तो आपको बॉडी कलर्ड बम्पर्स पे दो पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं। देन एक ब्लैक प्लास्टिक क्लैडिंग दी गई है जिसपे आपको रियर फॉग लाइट भी मिलती है प्लस यू गेट 2 रिफ्लेक्टर्स। प्लस अगर एग्जॉस्ट टेल पाइप की बात करें तो उसको स्मार्टली अंदर ही माउंट किया गया। टॉकिंग अबाउट द रूफ एलिमेंट्स तो यहाँ पे आपको सैडली सनरूफ तो नहीं मिल रही बट यू डू गेट दिस एंटेना
and also you have the option of dual tone contrast roofing. You also get few more factory fitted customized options जिसका पूरा डिटेल आपको इसकी बाइंग गाइड वीडियो में मिल जाएगा, where we discuss which variant is best as per your needs and also value for money at the same time. तो उसका लिंक मैं जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. Coming back to looks, so no doubt sharpness हर जगह मेंटेन्ड है, प्रोफाइल लुक sleek, अपीयरेंस लुक एनर्जेटिक एंड रिफ्रेश्ड. एंड जब से टाटा ने इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज पे काम करना शुरू किया है, टाटा की कार्स का लुक एंड फील ही बदल गया. आपको डिजाइन कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. नाउ लेट्स एक्सप्लोर द बूट. आई मस्ट से बूट लिड थोड़ा हैवी फील होता है एंड ऑल्सो जो ओपनिंग है वो भी काफी सॉफ्ट है, विच इज अ गुड पार्ट. सो दिस इज टेक्निकली 354 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, विच इज काइंड ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट. बट इसको अचीव करने के लिए फ्यूल कैपेसिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, विच इज ओनली 37 लीटर्स. बट यहाँ पे जो मेरे को अच्छी बात लग रही है, आपको यहाँ पे हुक दिया गया है, तो थोड़ा एडिशनल सामान यहाँ पे टांगना हो तो वो भी कर सकते हैं, बट ओनली 3 kg इज अलाउड. सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो अगेन यही हुक दी गई है एंड यू ऑल्सो गेट द कार्गो लैम्प. सामने की तरफ देखें तो आपको 2 सिंबल्स दिख रहे हैं, पास से दिखाऊं. सो दिस इज इंडिकेटिंग कि रियर सीट्स में आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिल रहे हैं एंड इस पर्टिकुलर स्पेस को एनहांस करने के लिए आप इस सीट को ड्रॉप कर सकते हैं और जैसे ही आप ड्रॉप करते हैं आपको फर्दर बूट स्पेस एक्सटेंडेड मिल जाता है. तो यहाँ पे अगर बात करें क्वालिटी की तो सब कुछ नाइसली पैक किया गया, आपको कुछ भी नेकेड देखने को नहीं मिलेगा. यहाँ भी प्लास्टिक है एंड ऑल्सो द पार्सल ट्रे ऑल्सो लुक स्टर्डी, ये बहुत मजबूत है. प्लस यहाँ पे रबर इंसर्ट्स दिए गए हैं तो बूट को क्लोज करते वक्त कोई आपको आवाज़ नहीं आने वाली, विच इज़ गुड. सो एक बार स्पेयर व्हील को भी चेक कर लेते हैं. दिस इज़ अ स्टील व्हील ऑफ कोर्स एंड यहाँ पे आपको प्रोफाइल देखेंगे तो दिस इज़ अ सुपर स्पेस सेवर व्हील, क्योंकि सिर्फ 14 इंच का साइज मिल रहा है जबकि बाहर आपको 16 इंच के अलॉयज मिल रहे हैं. एनीवेज नाउ लेट्स क्लोज द बूट. Now before moving inside, let me show you the keys of the Altro's top end variant. So these are the controls you get here: the normal open and close, the boot lid opener, and this one is to operate the headlights and the tail lamps also. So basically you get lead me to the vehicle or follow me headlamps feature manually जो आप keys से control कर सकते हैं. But I don't think so कि ये वाला feature ज़्यादा use हो सकता है because this is bit of a luxury feature. Now let's move inside. Now here comes the major highlight of the Altros, which are the wing 90 doors. ये 90 degree open होते हैं. सामने से देखें so these are inspired by the sprawling wings of the majestic soaring bird albatross. Now talking about the practicality of 90 degree doors, तो males का तो फिर भी चलता है, but females, especially those are wearing Indian ethnic dresses, तो definitely उनके लिए ingress और egress थोड़ा easy हो जाता है. Starting with the doors, so here you get all dual tone treatment and everywhere there is plastic except for this एरिया जहाँ पे आपको सॉफ्ट टच फैब्रिक दिया जा रहा है. एंड अनलाइक अदर कार्स जहाँ पे ये नीचे कवर्ड होता है, दिस इज ओपन, लेकिन देन ये थोड़ा सा वाइड है जिसको पकड़ने में थोड़ा सा बड़ा लगता है, बट अगेन दिस इज नाइस. आगे देखें तो आपको ऑफ कोर्स पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं एंड दिस इज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ORVM एडजस्टमेंट एंड फोल्डिंग फीचर. यहाँ पे आपको डोर ओपनिंग के लिए नाइस मेटालिक फिनिश दिया गया. दिस इज द ट्वीटर एंड दिस इज द स्पीकर विच इज माउंटेड ऑन ईच ऑफ द डोर. स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर स्पेस मिलती है, देन अ स्मॉल मैप पॉकेट विच इज आई डोंट थिंक सो मच ऑफ अ यूज, बट डेफिनेटली आपको एक स्पेशल फीचर दिया गया अपना अम्ब्रेला होल्ड करने के लिए, विच इज वेरी थॉटफुल ऑफ टाटा आई मस्ट से. लेकिन यहाँ पे कोई बहुत बड़ा अम्ब्रेला आ सकता है, आई डाउट. नाउ प्लीज अवॉइड द डर्ट क्योंकि मैं यहाँ वेयर हाउस में खड़ा हुआ हूँ. कमिंग टू द सीटिंग एरिया, तो यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट्स ही मिलती हैं, बट दिस इज 3D एम्बोस्ड अपहोल्स्ट्री जो देखने में थोड़ी प्रीमियम लग रही है. इसके अलावा फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्राइवर सीट के लिए हाइट एडजस्टेबल फीचर मिलता है, तो यू कैन एडजस्ट द हाइट एंड डेफिनेटली इसका कंफर्ट अभी हम 2 मिनट में चेक करते हैं. लेकिन उसके अलावा बात करें नीचे तो यहाँ पे आपको मिलता है ABC एंड अ डेड पेडल विद अ नाइस प्लास्टिक एंड एंटी स्किड टेक्सचर जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है. उसके बाद अगर यहाँ की बात करें तो आपको फुटवेल के लिए एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है जो रात को थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से पता लगेगी. इसके अलावा यहाँ पे आए तो आपको एक स्टोरेज स्पेस दी गई है विच इज़ वेरी डीप एंड ऑल्सो थोड़ी स्लोप्ड है, तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन और वॉलेट ईजिली रख सकते हैं. नाउ बिफोर मूविंग टू द इंटीरियर्स पहले हम हुड को चेक कर लेते हैं. एंड आई मस्ट से कि ये डोर जो है दैट इज़ अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ वेट एज वेल एज द सेफ्टी, क्योंकि इसका थर्ड साउंड एश्योरिंग है, ऑल्दो इसको खोलना और बंद करना ईजी लगता है. Now this is a petrol 1.2 liter Revitron engine with a peak power of 86 PS and peak torque of 113 Newton meters. Mileage claim is roughly 19.05 kmpl ARAI. You also get a diesel motor in Altos which is very rare in this segment nowadays. And उसकी performance figures और efficiency काफ़ी satisfying है. But talking about this petrol unit तो definitely
जब आपको बाकी टर्बो पेट्रोल यूनिट्स के बारे में पता लगता है जो इस सेगमेंट में कुछ कुछ कार्स ऑफर करी हैं, सो यू स्लाइटली फील कि थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस हो सकता है इफ यू ऑफ दोज इंजन्स। बट अल्ट्रोज का वेट भी नियरली 1050 kgs है, which is good from the safety point of view, but then you'll not get to see a very good acceleration. Anyways, Altos get a long list of safety features, and right from the base variant you get 2 airbags plus ABS and EBD as a standard offering. Now I'm finally inside, तो पहले इसके कंफर्ट की बात कर लेते हैं। जिस सीट पे बैठा हूँ कंफर्ट में एज सच कोई दिक्कत नहीं है, बट एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा कि लंबर सपोर्ट तो काफी अच्छा है, लेकिन अगर साइड सपोर्ट की बात करें और थाई सपोर्ट की बात करें तो वो थोड़ा सा कम रह जाता है। अगर उसको थोड़ा इंप्रूव किया जाए तो और अच्छा भी हो सकता है। टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग, तो यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्ट तो देखने को मिलता है, ऑल्दो देयर इज नो टेलीस्कोपिक एडजस्ट, बट टिल्ट एडजस्ट की वजह से आप एक बार इनिशियली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल्सो ये जो सीट बेल्ट है ये भी आपको एडजस्टेबल मिलती है, तो इसको भी एडजस्ट करके आप यूज कर सकते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर लैच, इसकी क्वालिटी मेरे को बहुत सॉलिड लग रही है, जो कि यूजुअली देखने को नहीं मिलता। स्टार्टिंग विद द डैशबोर्ड, तो यहाँ पे आपको क्लासिक सेटिन क्रोम फिनिश देखने को मिलेगी, स्पेशली ऑन 3 एरियाज। वन इज अराउंड द गियर शिफ्टर, अदर वन इज अराउंड द स्टीयरिंग, एंड थर्ड वन इज द वाइड वन अक्रॉस द डैशबोर्ड फ्रॉम हियर टू हियर। लेकिन एक एक करके इसके सारे एलिमेंट्स पे नजर डालते हैं। सो स्टार्टिंग विद दिस ड्राइवर आर्मरेस्ट, इसको आप स्लाइड कर सकते हैं, विच इज अ नाइस टच। और ये पर्टिकुलर आपको जो फैब्रिक दिया गया है ये भी मेरे को काफी अच्छा फील हो रहा है। दिस इज द सेम फैब्रिक जो आपको यहाँ पे डोर पे भी दिया गया था, तो यहाँ पे आपको स्टिचिंग भी दी गई है। एंड ऑल्सो इसको ओपन करना, देयर इज अ मैग्नेट, तो यहाँ पे आपको कोई क्लोज एज सच नहीं मिलता, लेकिन मैग्नेट है तो एश्योर कर लेता है क्लोजिंग को। अंदर आपको छोटी सी स्पेस मिलती है। दिस इज अ स्लोप्ड एरिया, तो आई एम नॉट श्योर कि ये कितना ज़्यादा सामान होल्ड कर सकता है, बट डेफिनेटली यहाँ से देखेंगे तो काफ़ी डीप है। आगे की तरफ बढ़ें तो हैंड ब्रेक मेरे को बहुत अच्छी लगी, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वाइड। और आगे आपको ये क्रोम सी फिनिश दी गई है, विच इज़ डेफिनेटली एडिंग टू द प्रीमियमनेस। इधर आएंगे तो आपको 2 छोटे छोटे कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ कप होल्डर, क्योंकि ये थोड़े स्क्वेरिश थीम में है, लेकिन डेफिनेटली आप यहाँ पे छोटे मोटे कप्स जो हैं होल्ड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कीज रख दी हैं। आगे आएंगे तो दिस बटन इज फॉर द इको और द सिटी मोड। जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ, देयर इज अ वॉइस अलर्ट, आप सुनिएगा अभी। Economy drive mode activated. सो एक्चुअली यहाँ पे डिस्प्ले आ जाता है कि इको मोड है कि सिटी मोड, और वॉइस अलर्ट के थ्रू भी आपको इंटीमेट कर दिया जाता है। आगे की तरफ आए तो ये गियर शिफ्टर, देयर आर 5 गियर्स। आगे की तरफ आए तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी जगह देखने को मिल जाती है। सो हियर यू कैन पैक मोस्ट ऑफ योर स्मॉल स्टफ। प्लस यहाँ पे सामने आपको USB पॉइंट और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया। सो दिस इज द केस फॉर योर चार्जिंग। ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको ये AC से जुड़े हुए सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। दिस इज द बेसिक वर्क, लेकिन यहाँ पे भी अगेन आपको एक क्रोम स्ट्रिप देखने को मिल जाती है। ऑटो फीचर भी यहीं पे मिल जाएगा, एंड देयर इज अ कन्वेंशनल नॉब जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर को। एंड ये सारा का सारा डिस्प्ले जो है AC का, वो आपको ऊपर स्क्रीन में ही मिलता है, जो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। दीज आर द वेंट्स जो आपको देखने को मिलेंगे, एंड साइड वाले आपको कुछ ऐसे दिखेंगे। सो देयर आर नाइस वेंट्स। और इससे मेरे को याद आया, एक इस क्वार्टर पैनल की भी बात कर लेते हैं। ये बहुत छोटा है, जो मैंने आपको बाहर भी बताया था। ऑल्दो यहाँ पे आपको एक ट्विटर देखने को मिल रहा है, विच इज गुड, बट ये एरिया ए पिलर पहले से ही बीफ्ड अप था और इसको और ज्यादा बीफ्ड अप कर देता है, क्योंकि अगर ड्राइवर साइड से भी देखें तो आगे चलाते हुए ये सारा एरिया जो है ब्लाइंड स्पॉट में कन्वर्ट हो जाता है, और एक्चुअली आपको सिर्फ यहीं तक दिखता है, विजिबिलिटी यहीं तक ही है सिर्फ। एनीवेज, coming back to the infotainment screen, so this is 7-inch touch screen infotainment screen by Harman, क्योंकि आपका 100 watt का Harman powered music system यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। and there is a basic layout जहाँ पे आप अपना फोन कनेक्टिविटी वगैरह कर सकते हैं। also you get connect next app from the Tata, जिसकी वजह से आपको यहाँ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। पर्टिकुलर अगर मैं यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स पे सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप एम्बियंट लाइटिंग को भी देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि फुटवेल एरिया में भी आती है। एक तो फुटवेल एरिया में है ही है, अगर आप वहाँ पे देख सकें तो लाइट का इंप्रेशन आ रहा है वहाँ पे भी, और पेडल्स के साथ भी। इसके अलावा एक जो एम्बियंट लाइट है वो इसके सराउंडिंग में है, और इस थोड़ा सा इसके अंदर की तरफ है, जो आपको रात को ज़्यादा अच्छी तरह दिख पाएगी, तो उसकी इंटेंसिटी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ये एरिया जो है आपका प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल के लिए है, तो जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि 23 डिग्री पे सेट है, तो उसकी सेटिंग करना, ऑल्दो ऑटो पे है तो वो सब छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें दिस फीचर, सो दिस इज़ डेफिनेटली द रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, तो आपको कैमरा के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल जाता है रियर व्यू, तो काइंड ऑफ अ DRVM ही है, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई है, रिवर्स में एंगेज नहीं है, फिर भी मैं इसका व्यू देख पा रहा हूँ। एंड
जैसे ही हम इसके स्टीयरिंग को मूव करते हैं तो यू कैन सी कि वो लाइंस भी अपने आप मूव हो रही हैं. सो देयर इज़ अ डायनामिक डिस्प्ले. जैसे ही आप स्टीयरिंग को मूव करते हैं आपको ये भी पता लग जाएगा कि गाड़ी कहाँ जा रही है. दैट इज़ अ नाइस. लेकिन यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि क्वालिटी जो मेरे को अभी लग रही है, ये दिन का टाइम है तो ऐसी है, तो रात के टाइम में मेरे को लग रहा है कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है. बट डेफिनेटली रात को इसको अलग से टेस्ट करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ को पक्का कहा जा सकता है. स्क्रीन साइज़ मेरे को थोड़ा सा छोटा लगा, स्पेशली जब हम i20 को देख चुके हैं जहाँ पे आपको 10 इंच की स्क्रीन मिलती है. तो डेफिनेटली कोई भी स्क्रीन आपको छोटी लगने वाली है. बट अगर मैं अनबायस्ड होके भी ये बात बताऊं तो ये थोड़ा सा आपको छोटा डेफिनेटली लगेगा, लेकिन एक बार आदत पड़ जाती है तो इसके मोस्ट ऑफ द कंट्रोल्स तो आपने यहीं से ऑपरेट करने हैं. तो दैट इज़ द नाइस फीचर जिस पे अभी हम बात करेंगे. इसके अलावा इसके टच की बात करूँ, उसमें डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज़ अ नाइस टच. और इसका जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, जिसकी वजह से आपको धूप में कोई एज सच ग्लेयर नहीं फील होने वाला. पर्टिकुलर अगर मैं क्वालिटी की भी बात करूँ यहाँ पे, तो बहुत जगह आपको क्रोम का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो कैबिन है वो थोड़ा सा प्रीमियम डेफिनेटली लगने लग जाता है. सो आई टेल यू कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है क्विकली. तो बेसिक सा सेटअप है. आपको वार्निंग लाइट्स देखने को मिल रही हैं. इसके अलावा इंजन टेम्परेचर, फ्यूल गेज और वो सारी चीज़ें हैं. इसके अलावा अगर बात करें सो हेयर इट इज शोइंग यू कि 50 किलोमीटर का रेंज आपको देखने को मिल जाएगी. इसके अलावा इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी देख सकते हैं आप. एंड ऑल्सो यू हैव द ट्रिप ए एंड ट्रिप बी, और उसकी क्या एवरेज रही है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. एवरेज स्पीड क्या रही है वो भी आपको बता रहा है, कितने टाइम में आपने वो ट्रिप कंप्लीट किया. सो ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन यू आर गेटिंग हियर. ऑल्सो आपका मीडिया जो है वो इस समय किस पोजीशन पे आप वो तक देख सकते हैं. सो आई मस्ट से कि काफ़ी ज़्यादा फीचर पैक्ड है ये स्क्रीन भी. इसके अलावा और फीचर्स देखें तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट पावर और टॉर्क देखने को मिल जाएगा, जो मेरे को बेलिनो की भी याद दिला रहा है, उसमें सेम चीज़ मिलती है. सो दिस इज बेसिकली द स्क्रीन. और अब स्टीयरिंग की बात करें, सो दिस इज द स्टीयरिंग एरिया. हॉर्न आपका लेफ्ट साइड से भी जो है प्रेस हो जाएगा, राइट साइड से भी हो जाएगा. इसके अलावा यहाँ पे आपको मीडिया कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं. आपको ब्लूटूथ सेटिंग करनी है, मीडिया को चेंज करना है, वॉल्यूम सेटिंग्स, वॉइस अलर्ट, म्यूट, कॉल, रिसीव एंड एंड ऑल ऑफ दैट फीचर्स आर ऑन द लेफ्ट साइड. एंड ऑन द राइट साइड यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के फीचर्स मिल जाते हैं, टू कैंसिल एंड टू एक्टिवेट इट, एंड ऑल द स्क्रीन रिलेटेड कंट्रोल्स जो मैंने अभी आपको करके दिखाए. इसके अलावा अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ तो इसकी क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लग रही है. एंड दिस इज द लेदर रैप्ड, प्लस इसका जो ग्रिप है वो बहुत सॉलिड है, और स्टीयरिंग का जो साइज है वो भी एडिक्वेट है. तो वो मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी. एंड देयर इज अनदर ब्यूटीफुल फीचर ऑफ दिस स्क्रीन कि यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिल जाएगी. तो आपका ध्यान बेसिकली सामने से हटता नहीं है, आप सामने ही ड्राइव करते हैं और आपको मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन यहीं पे देखने को मिल जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट फॉर टाटा डिज़ाइन टीम. इसके अलावा अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं. ऑटो की बैजिंग यहाँ पे आपको दे रखी है. इस साइड देखें तो आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट का ऑप्शन मिल जाता है. इस समय ऑटोमेटिक पे ही सेट है, जिसकी वजह से सामने अगर आप देख पाएँ तो लाइट जो है वो ग्लो कर रही है उस कार पे. दिस इज द फॉग लाइट. डेफिनेटली अब यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें दे दी हैं तो फॉग लाइट के कंट्रोल्स कहीं और देने पड़ेंगे. तो अल्ट्रोज में फॉग लाइट के कंट्रोल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं. दिस इज द फ्रंट फॉग लाइट, दिस इज द रियर फॉग लाइट. बेसिकली आप इंजन को बंद यहाँ से कर सकते हैं. तो आई थिंक हमने यहाँ पे सब कुछ कवर कर ही लिया. एक बार ग्लव बॉक्स को खोल के देख लेते हैं. सो दिस इज द बटन यू नीड टू प्रेस. सो दिस इज द ग्लव बॉक्स. थोड़ा सॉफ्टली खुलता है, विच इज़ अ गुड पॉइंट. और यहाँ पे आपको डेडिकेटेड स्टोरेज एरियाज मिल जाते हैं. यू गेट द कप होल्डर्स, द पेन होल्डर, द वॉलेट होल्डर, योर बेसिक पेपर वर्क होल्डर, वो सारी चीज़ें हैं. सामने आपको पीकॉक देखने को मिल जाएगा जो आपको मेक इन इंडिया की फील देगा. एंड दिस इज द 15 लीटर ग्लव बॉक्स जो कि डेफिनेटली इल्यूमिनेटेड है, आप देख पा रहे हैं. एंड ऑल्सो इट इज़ कूल्ड बाय द वे. तो यहाँ पे आप अपना कैंस एंड बॉटल्स रख सकते हैं. गर्मियों में डेफिनेटली एक अच्छा फीचर है. यहाँ पे आपको एक पार्टीशन भी दी गई है. सो आई थिंक ये रिमूवेबल तो नहीं है, बट डेफिनेटली अगर पार्टीशन है तो उसकी वजह से सामान को रखना जो है वो थोड़ा सा हम ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकते हैं. दैट इज़ नाइस. और इसकी क्लोजिंग जो है मेरे को थोड़ी एश्योरिंग लगी. दैट इज़ अ गुड पॉइंट. एंड पर्टिकुलरली इस प्लास्टिक को आप देखें थोड़ा पास से तो यहाँ पे टेक्सचर दिया गया एंड यहाँ पे टेक्सचर जो है वो बदल जाता है. तो डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे मटेरियल सिलेक्शन और क्वालिटी लेवल्स में बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिल रहा है. एक इंडियन कार जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड की है, मटेरियल सिलेक्शन इज़ वेरी गुड. जगह जगह क्रोम का यूज़ किया गया. तो डेफिनेटली टाटा ने जो प्रीमियम हैचबैक में कदम रखा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग कदम है और डेफिनेटली ये इसको आगे लेके जाने वाला है. नाउ कमिंग टू द रूफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे आपको मैनुअली जो IRVM को डिम करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ गुड पॉइंट. टॉप वेरिएंट में हम बैठे हैं तो इसको ऑटो डिमिंग होना चाहिए. एनीवेज ऊपर की तरफ आए तो ये आपको लाइटिंग देखने को मिल जाती है, इन कैबिन लैंप. ऑल्दो यहाँ पे बीच में आपको कोई भी लैंप देखने को नहीं मिलेगा. और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको लाइटिंग जो है प्रॉपर वाइट में दी गई है. तो डेफिनेटली ये पूरे कैबिन को इल्यूमिनेट कर देगा. दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम.
ऊपर आए तो कंपनी के हिसाब से एक सन ग्लास होल्डर है, बट आई थिंक कि सन ग्लास होल्डर जो है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, उसको कवर देना चाहिए। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो कंपनी को देखना चाहिए। दिस इज आई थिंक अ पार्ट ऑफ द हरमन म्यूजिक सिस्टम। इसके अलावा इधर आएंगे तो आपको सनशेड प्रोटेक्टर देखने को मिलता है जिसमें आपको वैनिटी मिरर दिया गया। अगर इसकी बात करें सो दिस इज द रूफ निटेड लाइनर, और अगर आप पास से देख पाएं तो यहाँ पे भी जो मटेरियल है उसमें बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, तो वो चीज़ मेरे को फिर से एक बारी अच्छी लग रही। नाउ लेट्स मूव टू द रियर सीट। नाउ रियर में पर्टिकुलर जैसे मैं मेंशन कर ही चुका हूँ, डोर्स को आपको यहाँ से खोलना पड़ता है, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन देखने में थोड़ा सा यहाँ पे हैंडल एरिया मिसिंग लगता है। इसको अगेन खोलेंगे तो आप 90 डिग्री खोल सकते हैं, एंड हेयर एक्चुअली रियर एरिया में 90 डिग्री डोर्स आर द रियल बेनिफिट, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आपके पेरेंट्स या फिर बच्चे बैठेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वाइड ओपनिंग मिल जाता है, प्लस जो फ्लोर है दैट इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट, जिसकी वजह से ये दोनों एलिमेंट्स मिलके अंदर के कंफर्ट को थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। और थोड़ा सा देखने में ये डोर छोटा लग रहा है, सो लेट्स सी कि अंदर बैठ के आपको जो कंफर्ट है वो कैसा मिलता है। सो इफ आई टॉक अबाउट द कंफर्ट हियर, तो हेडरूम इज वेरी लेस, ऑल्दो मैंने थोड़ी कैप पहनी हुई है, ये हॉलो है यहाँ से, और मेरी हाइट 5'7" है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 6 फुटर को थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एंड टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, तो ये थोड़ा सा वाइड है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो मैंने फ्रंट सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखा है, एंड स्टिल आई गेट दिस अमाउंट ऑफ लेग रूम विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि सीट्स थोड़ी सी स्कूप्ड आउट है, जिसकी वजह से लेग रूम आपको थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलता है। कमिंग बैक, तो यहाँ पे आपको पीछे आप देख सकते हैं हेडरेस्ट हैं, जो बहुत अच्छा पॉइंट है, टाटा ने इस चीज़ का ध्यान रखा है, विच इज़ गुड। अगर हाथ रखना चाहें तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, और ऑल्सो आपको यहाँ पे रियर आर्मरेस्ट भी दिया गया, तो वहाँ पे भी रखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ के अमेनिटीज़ की बात करूँ तो सामने की तरफ आपको रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट। थोड़े से छोटे हैं बट डेफिनेटली पीछे आपको जल्दी कैबिन ठंडा होता हुआ मिलेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। पीछे आपको एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट दिया गया, बट आई फील कि इसकी जगह एक USB पॉइंट दिया गया होता तो वो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर कोई स्टोरेज ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगेन इसको थोड़ा स्कूपिंग की गई है, जिसकी वजह से बीच में बैठने वाला आदमी अपने पैर आसानी से रख सकता है। एंड अगर शोल्डर लाइन की बात करें तो ये थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, और ये जो डे लाइट ओपनिंग एरिया जो बाहर से तो देखने में बड़ा लग रहा था, बट यहाँ से थोड़ा सा छोटा लगता है। ऑल्दो इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बट स्टिल इससे थोड़ा बड़ा होता तो और ज़्यादा एयरी फील आती डेफिनेटली। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी इन द रियर, तो यहाँ पे आपको सीट बेल्ट डेफिनेटली प्रोवाइड की गई हैं, बट यहाँ पे जो लैच आपको मिल रहा है वो वैसा नहीं है जैसा कि आगे मिल रहा था। ये थोड़ा सा आपको, मतलब ये ठीक है, वो तो बहुत अच्छी क्वालिटी थी, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ है, बट दैट इज़ नॉट एन इशू। इसके अलावा अगर आप बीच वाले पैसेंजर की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको लैप टाइप सीट बेल्ट ही देखने को मिलेगी, प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं दी गई है। सो ओवरऑल आई थिंक यहाँ पे हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर आप ये देखें तो आपको यहाँ पे एक कोट हुक भी मिल जाता है, which is also a good point. So to put it overall, Altroz में कुछ points तो बहुत शानदार है, like the build quality, safety, design and looks. All thanks to the new Impact 2.0 design language of Tata. बहुत ज़्यादा next level चली गई अब चीज़ें। लेकिन अगर हम कंफर्ट, कन्वीनियंस और फीचर्स की बात करें तो डेफिनेटली वो सेगमेंट बेस्ट तो नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत कम लगते हैं। तो एक कंपटीशन को टफ फाइट देने वाली चीज़ तो है Altroz, लेकिन सिर्फ एक परफॉर्मेंस ऐसा फैक्टर रह जाता है जो मैं वॉक अराउंड में टेस्ट नहीं कर सकता। उसके लिए मेरे को रिव्यू चाहिए प्रॉपर, तो वो तभी हो सकता है अगर मेरे को गाड़ी मिले। सो अगर आपके पास Altroz हो और आप ट्राई सिटी में रहते हैं तो डू लेट मी नो इन माय ईमेल, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं खुशी खुशी आपकी गाड़ी का रिव्यू शूट कर दूंगा। एंड आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी फीडबैक हो या क्वेरी हो तो वो भी पूछ लेना। इसके अलावा अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में। टिल देन बाय।